on. Can you see? There must be recording on. So as I was talking about revaluation of assets and liabilities, as explained yesterday also, revaluation of assets and liabilities will take place in all the times when there will be a reconstitution of partnership. Reconstitution of partnership means that either it is change in profit sharing ratio, or it is admission of partner, or it is retirement of partner, or it is a death of partner. इन चारों केसेस में revaluation account is must, and revaluation account is must because in all these cases there will be a new deed. तो जब एक न्यू डीड बनेगी उससे पहले की जो भी रिवैल्यूएशन असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू होगी ऑन द लास्ट डे ऑफ द बैलेंस शीट, जो 31 मार्च है, लास्ट डे ऑफ द एकेडमिक फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में जो बैलेंस शीट बनी होगी, वहां पर असेट्स और लायबिलिटीज की जो भी वैल्यू होगी वो अब तक, चाहे वो एडमिशन हो रहा है, चाहे रिटायरमेंट हो रहा है, चाहे डेथ हो रहा है, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, there must be some changes in the value of those assets and liabilities. assets की वैल्यू बड़ी होगी या फिर liabilities की वैल्यू कम हुई होगी तो फर्म को फायदा होगा. अगर assets की वैल्यू कम हुई है, liabilities की वैल्यू बड़ी है तो फर्म को नुकसान हुआ होगा. there must be some unrecorded assets and unrecorded liabilities also. taking into account all these revalued वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज, हम ये चेक करेंगे कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है या लॉस. और अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो इट शुड बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. This is very important point, that it should be debited and credited. Profit should be credited and loss should be debited to the partner's capital account. ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको मैंने कल समझाया. और रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट परफॉर्मा आपने देखा था, यू हैव सीन कि उसके डेबिट साइड में बिकॉज इट्स नेचर इज ऑल्सो नॉमिनल, नेचर ऑफ the account, revaluation account is nominal. तो अगर वो nominal है, इसका मतलब ये हुआ that debit all expenses and losses, credit all income and gain. It should be the rule. तो उसके हिसाब से जो assets अगर उनकी वैल्यू बढ़ती है और अगर liabilities उनकी वैल्यू कम होती है, they should be posted to the credit side of revaluation account. और अगर assets की वैल्यू कम हो रही है and liabilities की वैल्यू बढ़ रही है, it means it is a loss to the firm. तो उसको हम शो करेंगे on the liability side of revaluation account. It is very, very important. It is very, very important that the assets and liabilities की revaluation को आप ध्यान से समझें और ये देखें. दोनों बेटा अलग अलग चीजें हैं. एक के बढ़ने पे फायदा है तो दूसरे के बढ़ने पे नुकसान है. assets के बढ़ने पे फायदा है, liabilities के बढ़ने पे क्या है, नुकसान है. तो आपको ये नहीं अपने दिमाग में बैठा के रखना कि बढ़ने का मतलब फायदा ही होता है. whatever is the change असेट्स और लायबिलिटीज में, और उस चेंज की वजह से whatever is profit or loss, that has to be recorded in the change in profit, change in the value of assets and liabilities will be recorded, change. और उसके लिए जो आपकी नीचे एडजस्टमेंट्स दी होंगी, those adjustments have to be taken care of, those adjustments have to be understood carefully, attentively, and the more adjustment you do, the more perfect you will become in doing this type of questions.
and making revaluation account. So it will take some time. Every time you go through a revaluation account, in making a revaluation account, you may find some new transactions. Don't feel disheartened कि मुझे ये भी नहीं आती है, ये भी नहीं आ गई, ये भी नहीं आ गई. It takes time. After 30, 40, 50 questions, जब आप बहुत सारे adjustments you will be doing, तो आपको आसानी से सारे adjustments जो है समझ में आने लगेंगे. Then it will be repeated type, recurring type के हो जाएंगे वो आपके लिए, and you will definitely be able to solve it. कल जो है मंडे को जो है मैं आपको एक क्वेश्चन जो पूरा 8 मार्क्स क्वेश्चन है उसको जो है स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे कैसे आपको इन व्हाट स्टेप्स यू हैव टू डू. फर्स्ट में आपने क्या सॉल्व करना है, सेकंड में क्या सॉल्व करना है, थर्ड में क्या करना है, फोर्थ में क्या, फिफ्थ में क्या निकाल के रखना है इन वर्किंग नोट. एंड आफ्टर दैट हाउ टू कंपाइल that units in parts what you have calculated into a 8 marks question. 8 marks question जो है it is a assembling of different concepts, different topics which you are learning right now. उसके बाद आपको मैंने बताया था accounting treatment of reserves and accumulated profits. reserves and accumulated profits में 4-5 चीजें हैं, जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस. 5 थिंग्स तो आप नोट करके रखें अपने पास. 5 थिंग्स तो बिल्कुल नोट करके रखें. रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस. मतलब ये जितने भी चीजें हैं ये आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स में काउंट होते हैं. ये फर्म ने, पार्टनर्स ने प्रॉफिट में से बचा के अलग से रखे हुए, राइट. तो ये उनके लिए फायदा ही है. तो जब भी एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ होता है तो हम जो है इन रिजर्व्स को जिन पार्टनर्स ने भी इसमें सहयोग किया होता है उन पार्टनर्स में बांट देते हैं. तो अंडरस्टूड सी बात है, एडमिशन में रिजर्व्स वगैरह जो है नए पार्टनर को नहीं दिए जाते, जबकि रिटायरमेंट में, डेथ में और नॉर्मल केसेस में ये सारे पार्टनर्स में बांटा जाता है. बिकॉज दे ऑल हैव contributed, they all have taken part in earning this profit. तो जनरल एंट्री क्या होती है? all these reserves account debit to all partners capital account. टू मतलब हम उन्हें दे रहे हैं, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं. कौन से रेशियो में? इन ओल्ड रेशियो. ऑलवेज इन ओल्ड रेशियो. ऑलवेज इन ओल्ड रेशियो बिकॉज बैलेंस शीट से जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा that must be effort of all the partners. तो बैलेंस शीट से जब भी आप कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करें, चाहे वो आप डेबिट करें चाहे वो आप क्रेडिट करें, प्लीज डू इट इन द ओल्ड रेशियो. ऑलवेज इन द ओल्ड रेशियो फ्रॉम द बैलेंस शीट. और अगर फर्म को पहले से कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, फर्म को अगर पहले से कोई एक्यूमुलेटेड लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस में क्या होगा? एक्यूमुलेटेड लॉस मींस जैसे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मींस कि फर्म को लॉस हो रहा था. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का फिक्टिशियस है. एवरी ईयर इट इज रिटन ऑफ इन सम पोर्शन, सम पार्ट. तो वो सारा पैसा जो है एक्चुअल में होता नहीं हमारे पास. दैट इज ओनली इन द फॉर्म ऑफ फिक्टिशियस असेट. तो वो हमने राइट ऑफ करना होता है, राइट. वो पार्टनर्स के अकाउंट में हम क्या करेंगे? डेबिट. उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसे करके. ये मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था. यही हमने आपको दोबारा भी इसलिए एक्सप्लेन किया दैट वी आर जस्ट टेकिंग अ डेमो क्लास इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग एंड आई वुड अपलोड इट फॉर टाइम बीइंग इन द यूट्यूब जस्ट टू सी कि ये कैसे उसमें जो है फॉर्म होती है और कैसे उसमें नजर आती है. एंड यू कैन ऑल्सो आस्क सम क्वेश्चंस so that your voice can also be heard or recorded. Priya,
you say something or ask something so that it can be also recorded for our time. Yes. So in question number 30, Okay. reading necessary, pass the necessary single adjusting entry. Okay. And What has in to question be number 20, 30, 30, 30. yes sir. You are required to pass the necessary single adjustment entry. उनका मतलब है कि आपने इसमें कुछ चीजें डेबिट करनी होंगी पार्टनर के अकाउंट में, सम अमाउंट यू मस्ट हैव टू बी क्रेडिटेड आल्सो। तो करके जो हम फर्स्ट चैप्टर में नहीं सीखा आपने, एडजस्टमेंट एंट्री, पास्ट एडजस्टमेंट, उसके हिसाब से जिस पार्टनर को जितना देना और जिससे जितना लेना है उसका एक ही साथ हिसाब कीजिए। किसी को कुछ देना और लेना है तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल करके पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। एनीबॉडी एल्स? रमन, प्रिया, ना गुरप्रीत? Sir, यस। so what is employee provident fund? Employees Provident Fund. Employees Provident Fund is an exception. Please note down. It is not distributed amongst the partners. Employees Provident Fund is the only fund which is not distributed amongst the partner at the time of change in profit sharing ratio or reconstitution. Employees Provident Fund is actually for the employees. Employees जब रिटायर होते हैं फर्म से तो आपने सुना होगा पीएफ का पैसा मिलता है, वो ये वही पीएफ है। हर साल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी जो है या गवर्नमेंट एडेड जो इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनके एम्प्लॉयज की कुछ सैलरी हर महीने कटती है। मान लीजिए उसकी सैलरी है 30,000 रुपए, तो उसे मिलेंगे 27,000 या 28,000 रुपए। कुछ पैसे उसके कट गए, वो पैसे मान लीजिए 2,000 रुपए कटे, उसे 28,000 रुपए मिले। 2,000 रुपीज इंस्टीट्यूशन ने काट लिए, 2,000 रुपीज इंस्टीट्यूशन उसमें और मिला देगा, कितने हो गए? 4,000 रुपीज पर मंथ उसके अकाउंट में जमा हो रहे हैं। एक साल में जमा हो गए 48,000 रुपीज, 10 साल में जमा हो गए 4,80,000 रुपीज, 20 साल में हो गए 8,80,000 रुपीज, और अगर उसने 30 साल सर्विस करी तो लगभग 12 लाख 15 लाख रुपए हो गए। उस पर इंटरेस्ट फिर, ठीक। तो जब वो रिटायर होगा उसको इतने पैसे तो एक साथ मिलेंगे। ये होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर, क्योंकि वो पार्टनर का तो है ही नहीं। ये तो फर्म जब बंद होगी उस टाइम पे इसका हिसाब किताब होगा, राइट, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसलिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है पार्टनर्स में। वेरी गुड क्वेश्चन सी हैज आस्क्ड। जितने लोग अभी हैं उन लोगों ने भी सुन लिया, और क्योंकि क्लास रिकॉर्ड हो रही है ये आगे वाले बच्चों के लिए भी ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया। दिस इज द बेनिफिट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास, राइट। ये ध्रुव गायब हो गए। अरे ध्रुव गुप्ता तो है, ये दूसरे ध्रुव कहाँ गए? गायब हो जा रहे हो तुम बार बार। हाँ जी, क्रिश गायब हो गए। क्रिश, हाँ जी बोलिए। सर इसमें वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है क्या? यस माय डियर, योर स्वीट वॉइस इज आल्सो रिकॉर्डेड। नहीं सर, मैं पूछा था ना ऐसी। नहीं, आपकी स्वीट वॉइस इज आल्सो बीइंग रिकॉर्डेड। प्लीज आस्क some questions related to the topic also. ओके सर। हाँ, आपकी शकल भी रिकॉर्ड हो रही है, शकल भी दिखाइए अपनी प्लीज। जी और सर। ये ध्रुव, इतना बड़ा कमाल हो रहा है, तुम दो स्क्रीन में कैसे आ रहे हो भाई? अरे सर वो लैपटॉप में चला के देख रहा था सर। वेरी नाइस। लैपटॉप में कौन सा वाला लैपटॉप में चल रहा है जिसमें डार्क कलर आ रहे हैं? हाँ ये जिसमें फुल स्क्रीन में आ रहा है, जिसमें छोटा आ रहा है। इसमें अभी ये अभी फोन के माइक से बोल रहा हूँ, तो दूसरा वाला जो माइक बंद है वो लैपटॉप का है। ओके समझ गया मैं। तुम्हारे उसमें माइक काम नहीं कर रहा ना? करेक्ट, वेरी गुड। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हाउ कम ध्रुव एंड हिज ब्रदर सेकंड ध्रुव इज सीन। हाँ क्रिस, आस्क सम क्वेश्चन। यस रमनप्रीत, नो प्रॉब्लम। अभी क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर रही है तो प्रॉब्लम कहां से होगी?
Solve the questions, बेटा solve the questions. गुरप्रीत ने भी आज क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए. She was doing business. Yes. Yes, sir. And ना हम डेमो क्लास ले रहे हैं ना, वो रिकॉर्डिंग वगैरह चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई बच्चों को सही से आ रहा है नहीं आ रहा है इस पे. और बताइए, anybody else want to ask anything? फोटो क्यों खींच रही है? Anybody else? Tanya? Tanya? No, sir. No question? So this is our, I now just see, social distancing is wrong word. You have to maintain physical distancing. Don't touch anybody. You just believe that everybody is suffering from corona. And if I touch him or her, मेरे को भी हो जाएगा. So stay at far place. ये तो बहुत बढ़िया हो गया. इससे देखो ऑनलाइन क्लासेस की तो इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है. बहुत कम डिफरेंस है. अगर आप प्रॉपरली सही तरीके से ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं तो एक क्लासरूम और एक नॉर्मल क्लास ऑनलाइन क्लास में मुश्किल से 20-30% का फर्क पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा. एट द मोस्ट मैं कहूँगा 40%. 50-50 भी नहीं है ये. 50% से ज्यादा ही समझ में आ रहा होगा ऑनलाइन क्लास में. ऐसा नहीं. तो इट इज द डिमांड ऑफ द टाइम. सो कीप योर सेल्फ सेफ. एंड टुडे क्लास से हमें ये पता चल गया कि इसमें जो है पॉसिबल है. अभी 14-15 पार्टिसिपेंट्स हो गए थे, तब भी हमारे पास सामने एक ही स्क्रीन में आ रहे हैं. मुझे लग रहा है मेरी स्क्रीन में 22-25 आ जाएंगे लैपटॉप में. वो बढ़ते जा रहे हैं. जितनी भी इसका रेशियो होगा पता नहीं, लेकिन देखेंगे जब ज्यादा बच्चे होंगे हाउ मच कैन बी एडजस्टेड इन दिस. बट इट इज अ गुड एक्सपीरियंस और एवरीथिंग इज क्लियर. वॉइस इज क्लियर, वीडियो इज क्लियर एंड मोर कंफर्टेबल है इसमें. एंड वी विल कंटिन्यू दिस. और आपको जैसे बताया, जस्ट ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स अप टू, ये मेरे ख्याल से 35 तक हो जानी चाहिए. कल भी छुट्टी है आपकी. टुमारो इज ऑल्सो हॉलीडे. एंड उसके बाद भी टाइम लेंगे उसको करने में कंप्लीट. बिजनेस में आपको बता दिया नेक्स्ट वीक कोई भी नया वो नहीं देंगे. बिजनेस में नेक्स्ट वीक देयर विल बी नो new chapter. So my dear students, very good that you joined on a short notice, and the experience was okay, fine. And so onward we will be having class like this. Means I will do the recording of each class and upload it in the YouTube, so you also be in a proper attire and proper place. You should be also seen properly. बिल्कुल ऐसे जैसे हम आराम से बैठे, अपना आराम से आप लोग जैसे बैठ के like a student attending the class, it should appear like that. It should be a decent, genuine class like, because your every moment is also being recorded, and your voice, your questions, your feedbacks are also recorded. So that has to be also kept in mind. So just come back on Monday after 2 days holidays, and let us see how many more students join. Please communicate the message to all. Thank you. God bless all of you. Bye bye. Thank Bye, you, sir. sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.